We're getting some breaking news, a shocking, uncouth and sexist remark by a VVIP in Uttarakhand who put a price tag on Bihar's women and has sparked massive outrage with this remark. A vulgar women on sale remark has been made by a VVIP minister's kin from Uttarakhand and which has now drawn sharp condemnation from the Bihar State Women's Commission. The man in question is Uttarakhand Cabinet Minister Rekha Arya's husband Girdhari Lal Sahu, whose name figured in an alleged kidney racket earlier. The viral video shows the man claiming that Bihar women are available for 20,000, a degrading and absolutely sexist slur caught on camera. Shockingly, his wife is the State Minister for Women Welfare, and this man is no stranger to controversy, a repeat offender with a tainted past. The Bihar Women Panel has frowned upon what many call peak sexism and demanded strict action against this man, but no apology, no action yet by the Pushkar Singh Dhami government in Uttarakhand. So this sexist remark has been made by a minister, Uttarakhand minister's husband. And remember, it is important to note that the wife is the State Minister for Women Welfare, and her husband has made this sexist remark on Bihar women that Bihar women have a 20,000 price tag. They are available for 20,000, after which the Bihar Women Panel has demanded strict action for making this remark, but there's no apology or no action that has been taken by the Pushkar Singh Dhami government yet. So there's absolute silence from the Pushkar Singh Dhami government on this remark that has been made by the women welfare minister's husband, who says that Bihar's women are available for 20,000. And meanwhile, the opposition has started training guns on the BJP. Listen in. यदि महिला सशक्तिकरण और एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति ऐसी बातें करेंगे तो लगेगा कि वो मानव तस्करी कर रहे हैं या कुछ ना कुछ उसमें उनके कनेक्शन है। आप किसका अपमान कर रहे हैं? केवल बिहार की गरीब बेटियों का अपमान नहीं है ये केवल गरीब लड़कियों का अपमान नहीं, ये समस्त लड़कियों का अपमान है। और ये आपकी मानसिकता दिखाता है मंत्री पति जी कि किस तरह से आप बेटियों के बारे में सोचते हैं। इसलिए मंत्री जी, अब तो जरूरत है कि आप सामने आए अपने इस पति के साथ और इन्हें कहें कि माफी मांगे, और आप भी माफी मांगे, क्योंकि इन्हें भी मंच अगर मिला तो केवल इसलिए क्योंकि ये आपके पति हैं। And my colleague Ankit Sharma is now joining us on this story. Ankit, absolutely shocking and sexist remark has been made, that too by the husband of the State Women Welfare Minister. What action, if any, has been taken by the Pushkar Singh Dhami government? Well, Anjali, no action has been taken yet, and the outrage has spread not only across Uttarakhand but also the country. This misogynistic and demeaning statement from Girdhari Lal Sahu has raised outrage. He's the husband of the Women's Affairs Ministers in Uttarakhand, and she is responsible for women and child development in Uttarakhand. She's the cabinet minister, and coming this statement from her husband is obviously raising concern, because Uttarakhand is observing outrage and protest across the state to bring justice for Ankita, and amidst this statement has come as a shocker, not only for the citizens but also for the BJP. Voices have come across from the BJP within the party as well, and we are yet to see how the government is going to respond. No action or FIR has been lodged against him for such a statement. However, all right, Ankit, do stay with us. We're now being joined by Girdhari Lal Sahu, who has in fact made this remark against the women of Bihar. गिरधारी लाल जी, आपने एक ये बहुत आपत्तिजनक बयान दिया है जिसमें आपने कहा है कि बिहार की औरतें 20,000 में अवेलेबल होती हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस रिमार्क के थ्रू? देखिए मैडम, मैं वहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, स्वागत समारोह हो गया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। हाँ, वहाँ समारोह चल रहा था। ये बिल्कुल झूठ है कि 20-25 हजार वाली बात मैंने कही। ये कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ के उसमें ये हरकत की
और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, यदि मेरी जानकारी आप लेंगी तो पिछले 30 वर्षों से मैं 1 से 1 बेटियों की शादी करता हूँ, हर वर्ष अपने रामलीला में, बरेली में। और मैं बेटियों को अपने देवी के समान, उनको अपना देवी का स्वरूप मानता हूँ। ऐसा कभी मैं शब्दों का प्रयोग कर ही नहीं सकता हूँ, और न मैंने किया है। आप कह रहे हैं उसकी कि तोड़ मरोड़ के कांग्रेस ने पेश मैं किया है, पर एक्चुअल मैं कह स्टेटमेंट क्या था? आप वो हमें बता दीजिए, आप एक्चुअल में क्या मेरा कहना चाह मेरा रहे थे? मेरा मेरा स्टेटमेंट ये था कि मेरा एक मित्र था बैठा हुआ, हमने आपकी शादी नहीं हुई है, मेरी बहुत रिश्तेदारियां वहाँ हैं बिहार में, चलो करके वहाँ शादी आपकी करा लेंगे, वहाँ रिश्तेदारों में। इतना इस तरीके से कहा, और बहुत कम खर्चा होता है वहाँ, वहाँ ऐसा बैंड बाजी की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अब उसको फिर भी जी आपका मैडम, ये कहना है कि बिहार में कम पैसे में शादी हो जाती है, ना वो ना भी? ना ना, गलत गलत चीज, गलत, आप गलत से कह रही हैं, थोड़ा समझिए बात के लिए। अब तभी तो बात करने में मन नहीं होता है, आप लोग घुमा देते हो, नहीं, आप लोग उसको। आप क्लियरली बता दीजिए, आप एक्चुअल में क्या मीन कर रहे थे, आपने क्या बोला और आपका क्या मैंने कहने का मैंने मतलब ये था? कहा मैंने ये कहा कि शादी समारोह जो होते हैं वो बहुत बहुत बिना बिना बैंड बाजों के, बिना तामझाम के हो जाते हैं, साधारण विवाह भी होते हैं। और मैं साधारण विवाह पर ही भरोसा करता हूँ। मैं जो यहाँ पर विवाह करता हूँ, मैंने कभी उसका नाम दहेज नहीं रखा, मैंने उपहार रखा कि हम बेटियों को अपने उपहार दे रहे हैं। मैंने कभी दहेज का नाम नहीं लिया हुआ, मेरा ये निवेदन कहने का है। उसके बावजूद भी मैंने एक मैन, और आपने मेरे जो कल ऑडियो डाला था, मैंने उसमें ये भी कहा था कि यदि मेरी मेरी बात को उसके बाद भी किसी को बुरा लगा हो तो मैं सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। अब आप बताइए कि मैं आपसे कोई गलती कर दूं, आप मेरी बहन बोल रही हैं। हेलो, गिरधारी लाल जी, आपको क्या नहीं लगता कि आपको अपने शब्दों का चयन थोड़ा सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो पत्नी है वो स्टेट विमेन वेलफेयर मिनिस्टर है? आपको नहीं लगता कि मैं आपके मैं स्टेटमेंट्स मैं का मैं, काफी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, आप जो भी मैं बोलते हैं? आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस समय मैं एक बहन से बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी छोटी बहन से बात कर रहा हूँ। यदि मुझसे एक लफ्ज कोई झूठ गलत निकल जाए तो मैं आपसे माफी तो मांग सकता हूँ, बेटा माफी मांग रहे हैं हम आपसे, ये तो कह सकता हूँ। तो आप ये मान रहे हैं कि शायद शब्दों के चयन में कुछ गलती हुई आपसे और अब आप ना ना अपोलोजाइज ना करना चाह रहे हैं? ना, मेरे शब्दों में कतई गलती नहीं है। आपको मैं बड़ा दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप लैब में उसको भेज दीजिए, आप चेक करा लीजिए। अगर मैंने ऐसा कहा है, लैब में चेक करा लीजिए आप। अच्छा, आपके बयान के बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, काफ़ी पॉलिटिक्स भी हो रही है, जी ऑपोजिशन ने भी काफ़ी अटैक किया है। क्या आपके पास मुख्यमंत्री की तरफ से कोई मैसेज या कुछ इस पूरी कंट्रोवर्सी पे कोई मैसेज आया है सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री की अब तरफ से? मैं इस पर जीवन नहीं बोलूंगा, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो क्या हम इसको सरकार की चुप्पी समझे इस पूरे मामले पे? नहीं, अब जिस सरकार से आप पूछो, मैं सरकार में तो देखिए, आप अगर ये बात पूछेंगे तो मंत्री से पूछो, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। मैं नहीं, इतना आप कह ये कह सकता। रहे हैं आप साधारण आदमी हैं, बिजनेसमैन है, लेकिन आपकी जो पत्नी है उनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्टेट में, वो विमेन वेलफेयर मिनिस्टर है। बहन जी, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर वो मिनिस्टर है तो वो ही जवाब तो देंगे सरकार के बारे में, मैं उनकी बात का जवाब तो नहीं दे सकता हूँ। ना वो उस मंच पे थी, ना वो उस कार्यक्रम में थी, और ना माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में थे। कार्यक्रम में तो मैं था, और वहाँ की जनता थी। वहाँ एक समारोह चल रहा था, सबका स्वागत समारोह बुजुर्ग लोगों का हो रहा था। अब कोई बात का बतंगा बना दे, तोड़ मोड़ के अगर उसका लाभ लेना चाहे। अच्छा, एक बात देखिए, पूर्व उत्तराखंड में इनके लिए पक्ष क्यों नहीं मिल रहा है? पूरा उत्तराखंड की आप आज सोशल मीडिया उठा के देख लो, एक व्यक्ति ने कोई खराब लिखा हो मेरे बारे में? नहीं, एक सिंगल व्यक्ति ने उत्तराखंड में लिखा हो? मैं उत्तराखंड की बेटियों की भी वहाँ शादी विवाह करता हूँ, अपनी अपनी श्रद्धा कर, वो राखी मैंने 11,000 महिला बेटियों से शादी अपनी राखी बनवाई थी वहां पर। बहन जी, आप समझने की कोशिश आपको करें। आपको क्या लगता है कि आपका जो ये स्टेटमेंट है, जो कि आप क्लेम कर रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, पर जो इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी होनी थी वो हो चुकी है, इससे आपकी पत्नी का जो पद है उस पे असर पड़ेगा, उनका बिल्कुल प्रोफेशनली उनको असर पड़ेगा इससे? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। परिवार में जब कोई चीज होता है या कोई बात होती है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये सत्यता, अच्छा एक बात सुनिए, आप ही सत्यता अगर समझ जाए अभी कि भाई सत्यता ये है, तो आप ही तो कहेंगे नहीं नहीं साहू जी कहीं गलत नहीं दिख रहे हैं। आप भी तो न्याय में बैठी हैं। एक मीडिया भी तो एक न्याय है, हम उसको भी न्याय मानते हैं।
आप भी मुझे लगता है कि जब आप एक काम कर लीजिए, आप 2 लोगों से जांच करा लीजिए पूरे प्रकरण की। गिरधारी लाल जी, आपका जो बयान है उसके बाद जो बीजेपी के एलाय हैं जेडीयू, जो कि बिहार में पावर में है, वो भी काफी गुस्से में हैं और आपके बयान से जो आपने बिहार की लड़कियों के लिए दिया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब वो समझेंगे कि सत्यता क्या है, तो वो कतई नाराज नहीं होंगे। सत्यता जब समझेंगे, बात सत्यता पे है। अभी सत्य देखिए, अभी तो चीजें असत्यता पे चल रही है। सत्यता की जानकारी होगी, आप मुझे लग रही है 90% सत्यता पर पहुंच चुकी होंगी मेरी बातों से। जी, एक आखिरी सवाल, आप इसको कैसे एंड करना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे बिहार की औरतों के बारे में जिस पे ये पूरा बयान था और जिसके बाद ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई? देखिए बहन जी, मैं तो इतना कह सकता हूँ, ये बयान तोड़ मरोड़ के किया गया। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो इसका लाभ उठाना चाह रही थी। मेरी पत्नी के मुकाबले पे इनके लिए कोई प्रत्याशी वहां नहीं मिल रहा है उस विधानसभा में। कोई प्रत्याशी इनको कोई लड़ने को तैयार नहीं है, तो इन्होंने उनके पति को फर्जी घेरने की कोशिश की थी। मैंने उसके बावजूद भी कहा, पुनः मैं कह रहा हूँ, यदि मेरी बात का कोई मैं फिर पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि बुरा लगा हो तो मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। ठीक है। गिरधारी लाल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सो दैट वाज गिरधारी लाल, द मैन इन क्वेश्चन हु हैज इन फैक्ट मेड दिस शॉकिंग and sexist remark. Remember, he is the husband of the Uttarakhand women welfare minister, and he said that Bihar women are available for 20,000, and after which the opposition has been attacking the Pushkar Singh Dhami government for being silent on this issue and for not taking any action. But the man in question, Girdhari Lal, claims that his remark was twisted by the opposition. This is what he claimed while talking to India Today, and he said that he has done a lot of welfare things for the women, and he did not intend to make that remark, and that his remark has been twisted.